VM خلیل الرحمان چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ طبیعت کا خیال رکھیے گا۔ اب میں مولانا کاکا انیس صاحب عمری دامت برکاتہم کا ایک بہت ہی اہم خطاب پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ یہ خطاب ماہنامہ راہ اعتدال میں شائع ہوا ہے۔ فارغین جامعہ کے نام درد مندانہ پیغام، 17 مئی 2026 کو منعقدہ جامعہ کے سالانہ اجلاس میں پیش کردہ خطاب۔ میرے عزیزو، آج کا دن آپ کی زندگی کا ایک نہایت اہم اور یادگار دن ہے۔ آج آپ جامعہ کی اس پرسکون فضا سے نکل کر عملی زندگی کے وسیع میدان میں قدم رکھنے جا رہے ہیں۔ یہ مرحلہ جہاں خوشی کا باعث ہے، وہیں آپ کو ایک بڑی ذمہ داری کا احساس بھی دلاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ایک عالم دین کی زندگی کا اصل مقصد اللہ کے دین کی خدمت اور انسانیت کی خیر خواہی ہے۔ آپ زندگی کے جس شعبے سے بھی وابستہ ہوں اور جہاں بھی رہیں، آپ کی نگاہوں کے سامنے اعلیٰ کلمت اللہ کا عظیم مقصد رہنا چاہیے۔ اگر آپ نے خدمت دین کو اپنی زندگی کی اصل ترجیح بنا لیا تو یقین رکھیے کہ آپ کامیاب ہیں، چاہے دنیا کی ظاہری آسائشیں آپ کو کم ہی کیوں نہ حاصل ہوں، لیکن اگر آپ خدمت دین کے جذبے سے محروم رہیں تو یہ محرومی یقیناً آپ کے لیے مقصد زندگی میں ناکامی کے مترادف ہے۔ میرے عزیزو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ آج جو سند آپ کے ہاتھ میں دی جا رہی ہے، یہ تکمیل علم کی منزل نہیں بلکہ علم کے ایک نئے سفر کی ابتدا ہے۔ یہ اختتام نہیں بلکہ یہ نئے آغاز کی علامت ہے۔ اس لیے کبھی یہ احساس دل میں نہ آنے دیجیے کہ اب آپ علم کی آخری منزل تک پہنچ گئے ہیں، بلکہ اپنی علمی پیاس کو ہمیشہ زندہ رکھیے اور عصر حاضر کی علمی و تعلیمی سہولیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ اللہ نے اہل علم کو بلند مقام عطا فرمایا ہے، لیکن یہ رفعت معلومات کے ذخیرے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس علم کے نتیجے میں پیدا ہونے والی خشیت الہی اور حسن عمل کی وجہ سے ہے۔ ایک عالم دین کا پہلا فرض یہ ہے کہ اس کا علم اس کے اندر معرفت الہی، خوف خدا اور عملی زندگی کی پاکیزگی پیدا کرے۔ اس کی عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت اور کردار اسلام کی عملی تصویر بن جائیں۔ ہماری شخصیتیں کردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئینہ دار ہوں، تاکہ لوگ ہمارے قول سے پہلے ہمارے عمل کے ذریعے اسلام کی خوبصورتی کو پہچانیں۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ دین میں بصیرت کے لیے صرف کتابی علم کافی نہیں بلکہ زمینی حقائق، عصری مسائل اور زمانے کے تقاضوں سے واقفیت بھی ناگزیر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جزوی اور فروعی مسائل میں مہارت رکھتے ہوں لیکن دین کے مزاج، اس کے بنیادی اصولوں اور بدلتے ہوئے حالات سے ناواقف رہیں۔ ایک عالم دین اور داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عہد کی زبان، اس کے مسائل، اس کی تہذیب اور اس کی نفسیات کو سمجھے۔ اس مقصد کے لیے دینی علوم میں رسوخ کے ساتھ عصری علوم اور جدید افکار سے واقفیت بھی ضروری ہے۔ مطالعہ ہماری زندگی کا مستقل معمول ہونا چاہیے۔ علمی بصیرت، فکری پختگی اور وسعت نظر مسلسل مطالعہ اور مختلف اہل علم کی کتابوں سے استفادہ کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج طبق علماء کے بعض افراد کے لیے سطحی مطالعہ اور کتاب سے دوری ایک مسئلہ بنتی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا نے ہمیں
मालूमात की फरावानी तो दी है, लेकिन गहराई, तहकीक और गौर व फिक्र के ज़ौक़ को कमज़ोर भी किया है। इसलिए ज़रूरी है कि हम किताब और इल्म के साथ अपना ताल्लुक़ मज़ीद मज़बूत करें। हमें कुशादा दिली और गैर जानिबदारी के साथ मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के अहले इल्म की तहरीरों से इस्तिफ़ादा करना चाहिए और हमेशा उस उसूल को सामने रखना चाहिए जो बात हक़ और मुफीद हो उसे कबूल कर लो और जो गलत हो उसे छोड़ दो। अज़ीज़ान मन, मौजूदा दौर की बड़ी आजमाइशों में से एक इंतहा पसंदी, तंग नज़री और तखरीबी सोच का फ़रूग़ है। आप इस फ़िक्री दलदल से हमेशा महफूज रहिए। जामिया ने आपको ईमान और अमल के साथ एतदाल फ़िक्र, वसअत नज़र और उम्मत की खैर ख़्वाही का जो कीमती सरमाया अता किया है, उसे ज़िंदगी भर संभाल कर रखिए। दीन की खिदमत करने वाले अफराद, इदारों और जमातों की कदर कीजिए, उनके साथ हुस्न ज़न का रवैया इख्तियार कीजिए, उनकी खूबियों का एतराफ़ कीजिए और नेकी व तक़वा की बुनियाद पर उनके साथ तावन कीजिए। अगर किसी वजह से किसी के साथ तावन मुमकिन ना हो तो कम अज़ कम उसके नेक कामों में रुकावट न बनिए। आज हमारा मुल्क और माशरा जिस नाजुक दौर से गुज़र रहा है, उसमें आपकी ज़िम्मेदारियाँ पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ये वक्त नफ़रतों की आग भड़काने का नहीं, बल्कि मोहब्बत, खैर ख़्वाही और अमन के फूल खिलाने का है। आप दाइयान हक़ हैं। आपके पास इंसानियत के लिए नजात बख्श पैगाम है, इसलिए आपकी ज़िंदगी का हर लम्हा इस पैगाम की रहमत को आम करने में सर्फ होना चाहिए। आपकी सोच तामीरी हो, आपका अंदाज़ गुफ्तगू हकीमाना हो और आपकी दावत इखलास, मोहब्बत और दर्दमंदी पर मबनी हो। खुद भी हर किस्म की तकरीब से दूर रहिए और दूसरों को भी इससे बचाने की कोशिश कीजिए। आखिर में एक बार फिर आप तमाम अज़ीज़ फ़ज़ला को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारी दुआएं, नेक तमन्नाएँ और उल्फत व मोहब्बतें हमेशा आपके साथ रहेंगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान अमान में रखे और आप हज़रात से दीन व ईमान की सरबुलंदी की खिदमत ले। आमीन। सल्लल्लाहु अला नबी व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं इस वक्त ये भी कह देना चाहता हूँ कि जब मैं ट्रेन में सफ़र करता था तब कभी कभी ब्रादरम काका अनीस साहब भी नज़र आ जाते थे। उनके हाथ में किताब होगी, वो हमेशा मुताले में लगे रहते थे। इस किताब में ब्रादरम मौलाना काका अनीस साहब ने जो बात कही है वो मैं समझता हूँ उन्होंने अमल करने के बाद किया है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं ज़माने से ब्रादरम मौलाना अनीस अहमद साहब को जानता हूँ। मैं मरहूम काका उमर साहब मौलाना और मरहूम मौलाना सईद साहब, इन लोगों से भी मैंने दुआएं ली हैं। उनके मशवरे भी मुझे हुए हैं। उनसे कई बार मुलाकातें हुई हैं। उनके बयानात को मैं कई बार सुना हूँ। लिहाजा अब ब्रादर मौलाना काका अनीस साहब उमरी जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं दारुस्सलाम में, ये बहुत बड़ी बात है। हम सब आवाम होने के नाते ये ख्वाहिश करते हैं, ये दुआ करते हैं दिल की गहराइयों से कि अल्लाह उन्हें तंदुरुस्ती के साथ तवील उम्र अता फरमाए और वो इसी तरह अपने आबा व अजदाद की तरह खिदमत दीन में लगे रहें।
दारुस्सलाम उमराबाद को आगे बढ़ाते रहें ताकि उसमें पढ़ने वाले लोगों का, जो कि अक्सर गरीब होते हैं, फ़ायदा पहुँचे। दारुस्सलाम एक ऐसा इदारा है जिससे पसमानदा मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचता है। ये बहुत बड़ी बात है, इस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। कितने इदारे अमीरों के, आला तालीम याफ्ता लोगों के मौजूद हैं हमारे मुल्क में, जो गरीबों के लिए इदारा बनाकर काम करते हैं। जहाँ तक मुझे इल्म है, नहीं है या नहीं के बराबर है, मगर दारुस्सलाम उमराबाद जैसे इदारे गरीबों की तालीमी मदद कर रहे हैं, उन्हें आला मुकाम पर पहुंचा रहे हैं। आज हम देख सकते हैं क्या हज़ारों दारुस्सलाम उमराबाद से फारिग उलमाए कराम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद हैं, उनसे बहुत अच्छा काम हो रहा है। वो भी खुश हैं और औरों को भी खुश कर रहे हैं। ये हम जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, और मेरी ज़बान इसके लायक भी नहीं है कि मैं तारीफ़ इस कदर कर सकूं कि इसमें इंसाफ नज़र आए। दारुस्सलाम उमराबाद को सलाम, हज़ारों सलाम अर्ज़ करते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।